एक सेकंड, am I audible to all of you? Am I audible to all of you? आज मैं यूज नहीं कर पा रहा हूँ ये this one. The reason being I'm using Mac. Next day I'm going to use this. Am I audible to all of you? सुन पा रहे हो सब? Am I audible to all of you? Yes. Oh, that's great. That's great. So how are you all? How are you all? Good evening to all of you. How are you all? Okay. So guys, how are you? Okay, doing good. बाकी सब कैसे हो? बाकी कोई अच्छा नहीं है क्या? How are you? Sajjad, Disha, Devjit, Archana, Ravi. Who is that? I don't know. Yeah. Akshata. Okay, that's great. So Amisha. Achha. So guys, today we are going to start with the jurisprudence. It's the very first class of the jurisprudence. We're going to learn. We're going to understand the things. But मैं आपसे पहले एक सवाल पूछूंगा. What's your relationship with jurisprudence? ये पहला क्वेश्चन है. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए because maximum students, many of you people can listen to me, right? You can listen to me clearly? Yes, yes. अच्छा, बहुत बढ़िया. So what's your relationship with jurisprudence? Jurisprudence के साथ आपका relationship क्या है? अगर अच्छा है, you will write me, बहुत बढ़िया सर. अगर नहीं है relationship, sir, घटिया sir, it's not good. Okay, so you're going to type me in the chat box, how is your relationship with jurisprudence? It is the first and fundamental thing that we need to understand. क्योंकि हम लोग अगर jurisprudence के साथ relationship अगर हम लोग पहले determine नहीं करेंगे, we will not be able to build a better relationship. अच्छा, okay. और this is average to घटिया. Okay. Very bad, not good. Average, not good. Okayish, okay, not great, not so. Average, okay. Average, okay. Average, not that great, not good. Not good. Okay. So maximum of the people, I don't any one of you here इसके अच्छे हैं, at least you say कि sir ठीक ठाक है, it's good. It's good. Any one of you here? Any one of you here? ठीक ठाक है. Okay. Saurabh Kumar is saying ठीक ठाक है. Okay. That's great. Now देखो सबसे important चीज आपको समझना पड़ेगा. Why do we have so average or bad impression of jurisprudence? हम लोग का इतना खराब relationship क्यों है jurisprudence के साथ? What do you think? आपके क्या इंडिविजुअल अंडरस्टैंडिंग है कि jurisprudence के साथ मेरा इतना खराब रिलेशनशिप क्यों है? क्योंकि jurisprudence is one of the most fundamental subjects जहां से आपके 10 से 20 मार्क्स आएंगे. तो आप अगर jurisprudence को छोड़ के जा रहे हो तो मतलब आप 20 मार्क्स छोड़ के जा रहे हो. ऐसा नहीं आप छोड़ के नहीं जा सकते हो. Right? You can very well totally neglect the jurisprudence and you go to exam. Yes, you can. But उसमें 10 मार्क्स आपके सैक्रिफाइस होंगे, 15 मार्क्स आपके सैक्रिफाइस. We're not taught properly, too theoretical. इतना criticism, definition lengthy. Yes. Okay. Okay. Or any other thing? Any other why? Think it through. For 1 मिनट आप लो सोचो कि क्यों मेरा jurisprudence so है, मेरा jurisprudence below average है, मेरा jurisprudence इतना अच्छा नहीं. Why my jurisprudence is not that great? Why my jurisprudence is not that great? Because if you don't understand that, I'll not take you to the very important thing कि jurisprudence में क्या improve करना है, कैसे improve करना है. हम लोग आज too much to memorize. Okay, not thought properly. Okay, too many things to remember. Now देखो, all these things are very very important क्योंकि हम लोग को इसके ऊपर काम करना है. ठीक है? Then we'll be able to improve our jurisprudence. Right? अच्छा. Anyone write it down? Write it one. So all in law school, even I didn't. देखो तो दोनों ही है. ठीक है? I was not taught properly in the law school. Even I didn't study, sir. और वहां से भी छोड़ दिया सर, यहाँ से भी छोड़ दिया गया. चलो दोनों साइड से कोई टेंशन नहीं है. Relevance in the present day. Yes.
could not understand its relevance in present day, right? Now, that's another thing. Yeah, it was COVID era. It was COVID era. Yes, COVID era has caused too many law subjects for this batch and even probably previous batch and next batch also. COVID era ने बहुत सारे law subject को मतलब sacrifice करना पड़ा student को COVID के लिए. Am I right? Definitely. Yes. So अभी हम लोग देखते हैं डायरेक्टली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जाएंगे. हम लोग देखेंगे कि किस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हैं. वी आर नॉट गोइंग टू आंसर एनीथिंग. आर यू अंडरस्टैंडिंग? टू मेनी फिलोसफीज व्हिच आर सिमिलर इन नेचर, डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई फिलोसफीज एंड स्टेटमेंट्स. हियर अब देखो, एवरी वन ऑफ यू, हम लोग पहले क्या करेंगे, हम लोग वी हैव सीन द फोबिया एंड एवरीथिंग, हम लोग सारे नोट डाउन कर चुके हैं सब. आपके जो प्रॉब्लम है नोट इट डाउन बिकॉज वी हैव टू रेक्टिफाई दिस थिंग. अभी हम लोग जाएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में, ठीक है, 2023 में, even 2021 में, 2 में. we'll see कि what kind of questions are generally asked. will that be good thing कि हम लोग को अगर we have to walk that path, let's see कि what that path beholds. at least इस पाथ में आगे चल के मुझे क्या मिलने वाला है उसको तो देखना चाहिए मुझे, राइट और रॉन्ग. कि ये मुझे 10 मार्क्स स्कोर करना है, इसके 10 मार्क्स स्कोर करने के लिए मुझे कितना पापड़ बेलना है, लेट अस सी, राइट. तो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर देख के एटलीस्ट विल गेट टू अंडरस्टैंड कि what are basically asked. we are not going to get into the question answer. मत सोचो कि क्वेश्चन आंसर में जाएंगे, हम लोग सिर्फ एनालाइज करेंगे कि what kind of questions are asked. shall we? is this the right way कि हम लोग को जो पूछा जा रहा है एक बार देख तो ले क्या पूछा जा रहा है. shall we? एक बार देख लेते हैं कि क्या पूछा जाता है. 10 मार्क्स, 15 मार्क्स, 20 मार्क्स, whatever is going to be asked, let's see कि what is going to be asked. ये मेरे से होगा या नहीं करेंटली वो भी देखते हैं, या यहां से आगे बढ़ना है वो भी देखते हैं. बट विदाउट अंडरस्टैंडिंग व्हाट दे आर आस्किंग तो बात तो नहीं बन रहा है, ठीक है. सो लेट्स सी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग. तो मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूं. मैं आपके लिए यस एक सेकंड, आप लोग आपके लिए आज कुछ एमसीक्यूज भी मैं क्रिएट किया हूं एंड आपके वीकली टेस्ट तो होगा ही, उसमें भी एमसीक्यूज होगा, ठीक है. तो आज का जो सेशन है मैं थोड़ा बहुत स्टार्ट करने से पहले ये सारा चीज मैं बता देता हूँ. अच्छा ओके, 2023 पेपर, लेट मी शेयर, एक मिनट रुको, लेट मी शेयर द स्क्रीन विद यू. 2023 पेपर अगर किसी के पास है यू कैन ओपन इट, अगर नहीं है तो शायद आपको प्रीवियस क्वेश्चन पेपर मिल जाना चाहिए. अगर नहीं मिला है nonetheless we'll share with you. Okay, is it visible to you 2023 paper, this CLAT PG 2023 paper? Is it visible to everybody? Yes, yes, it's visible. अच्छा, that's great. चलो अभी देखते हैं कि ये जूरिस्प्रूडेंस पे है क्या यार, इतना क्या टफ है कि पूछे जा रहे हैं आंसर नहीं हो पा रहा है, ठीक है. व्हाट आर द थिंग्स. अच्छा कौन सा वाला जूरिस्प्रूडेंस का क्वेश्चन है ये थोड़ा देख लेते हैं. यंग लॉ एसोसिएशन नहीं, सबरीमाला ये है, छोड़ दो ये इसको. कृष्ण कुमार सिंह नहीं है. अच्छा, दादर मेट्रोलॉजी हाई कोर्ट प्रोड्यूस्ड, दिस इज फ्रॉम ना, रेज्यूमे चेकअप नहीं, नेशन वाइड लॉकडाउन नहीं, ओके. ये कौन सा है, सीजे ललिता कुमारी नहीं, 43. Anyone can tell me the number of question that so that I will directly get it. ये है एविडेंस लॉ का क्वेश्चन, ये भी नहीं. अच्छा, is this the question? Is this the question? Is this the question? I think so, right? Question number 7, there are two different ways we can think law and law making. It is not particularly from this, I think so. यही है question. मुझे जितना लगता है this is the 7th one. Previous year's papers. Yes, Saswat, you are right. This is the question that was considered for the general law understanding. Okay? अगर नहीं है हम लोग 2021 के पेपर में देखेंगे, no problem. Okay? अच्छा, ये देखो. Now ये 2023 के पेपर है. Now बोलोगे 710 सही से, there is no particular 2023 में क्वेश्चन पेपर है ही नहीं. अगर 2022 में है आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे 2022 में, ठीक है. उसमें नहीं है तो इसमें देखते हैं. ओके, so this is the general understanding of law and general comprehension is going to be asked. Is it visible to all of you? I hope you can see it, right? Everybody, there are two different ways we think about law and law making. To put it crudely, we can think of law as
पार्टीशन, ये है आपके पर्टिकुलर इसके क्वेश्चन पेपर, ठीक है। अब इस क्वेश्चन पेपर को कहां से लिया गया है, देखो, फ्रॉम द लॉ बाय जेरेमी वॉल्टन राउटलेज, ठीक है, यहां से इसको उठाया गया है। ना आप बोलोगे सर ये तो डायरेक्टली जूरिस्प्रूडेंस का है नहीं, ट्रू, ये डायरेक्टली जूरिस्प्रूडेंस का है नहीं, बट दैट्स व्हाट इट्स ऑल अबाउट। आप ये मत सोचना कि मैं जूरिस्प्रूडेंस पढ़ रहा हूं, वहां पर 6 schools are there, 7 schools are there, and I am going to be asked question from that 7 school, because that era has passed totally. इस क्वेश्चन से अगर आपको आंसर करना है, आपको इस पैसेज को पढ़ना पड़ेगा। आर यू एग्रीइंग विद दैट फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, विद दिस पर्टिकुलर कॉम्प्रिहेंशन? ये इससे आपको ये समझ में आ रहा है कि सर ये जो पोर्शन है ये जनरल लॉ के अंडरस्टैंडिंग के लेके मुझे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, राइट और रॉन्ग? मुझे लॉ क्या है और लॉ की अंडरस्टैंडिंग क्या है, उससे एक पैसेज उठा के दिया जा रहा है फ्रॉम ए डिफरेंट जर्नल। इतना मुझे समझ में आ रहा है? आर यू पीपल अंडरस्टैंडिंग दिस थिंग? यस और नो? इतना समझ में आ रहा है, यस और नो? कि एक लॉ का पेपर है, मतलब मुझे बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेना है, वहां से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। अगर किसी के पास 2022 के पेपर है तो मुझे आप मेल करो, मैं उससे भी आपको दिखा रहा हूं, ठीक है। एनीवन हैविंग 2022 पेपर? एनीवन हैविंग 2022 पेपर? किसी के पास है अभी करेंटली 2022 का पेपर है? एनीवन हैविंग इट? यस अर्चना, आप एक बार मुझे info.judices.com में मेल करो, मैं वहां पर भी दिखाऊंगा, यू विल गेट टू अंडरस्टैंड ईयर वाइज, ठीक है। तब तक info@judices.com में मेल करो, ठीक है। अब देखो व्हाट आर द थिंग्स आर देयर, इसमें अगर हम लोग देखें, the one thing will not get into too much details of it right now, but what we can understand, there are 2 different ways। यहां से पॉलिटिक्स पार्लियामेंट की बात है, जनरल अंडरस्टैंडिंग की बात है, और वहां से 10 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एंड दिस क्वेश्चंस but not that easy, not that tough. Anybody who can understand the law as such and reading comprehension जो अच्छे से पढ़ पाएगा वो कर लेगा, वो कर लेगा, ठीक है। That it was, ठीक है। तो ये रहा आपका 2023 का पेपर। अर्चना काइंडली डू इट फास्ट, ठीक है। मैं 2022 के पेपर में जाऊंगा, वहां पर एक्चुअली आपको 2022 पेपर में यू विल गेट 2 पैसेजेस फ्रॉम द डायरेक्ट कॉम्प्रिहेंशन, ये जूरिस्प्रूडेंस। सर आई हैव व्हाट्सएप ऑल द प्रीवियस, स्मार्ट। आप व्हाट्सएप में कैसे दिखाऊं मैं आपको मुझे मेल करना पड़ेगा। आप मुझे मेल करो ना एक बार प्लीज, मेल करो, I'll share with you. Yeah. Kindly mail it, then I'll be able to share with you. Yes. Kindly mail it. Archana, is it done? This I mailed you. Okay, great. अच्छा, एक मिनट रुको. Let me open the mail. उसके बाद मैं दिखाता हूँ another thing. Disha. This is super fast. Okay. 2022 paper. अच्छा, ये पहला ही क्वेश्चन, लॉमैन एंड लेमैन, ठीक है। ये देखो, अब देखो, दिस इज द वन क्वेश्चन एंड अनदर वन मोडालिटी ऑफ लॉ में फुलर का क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो इंटरेस्टिंग चीज, लुक एट दिस पैसेज, both lawman and layman often ask what is the law applicable to a given set of facts. The answers to this question differ depending upon the specific jurisdiction to which the given set of facts is linked. Okay, contrary to this, scholars and students of jurisprudence are likely to ask the general question what is law. ये law के ऊपर है, right? ये basic definition के ऊपर है। अब देखो, शायद आप ये पैसेज पढ़े नहीं हो। Validity of the law resides in the political sovereignty of the maker of that law, refers to which school? Anybody who knows the political sovereignty which school denotes, कुछ अगर पढ़े हो तो very well understand कौन से स्कूल के साथ ये जा सकता है without reading the passage itself.
Anybody who understand political sovereignty concept? Command of the sovereign कहां पर है? Command of the sovereign कहां पर है? Positive school, yes, true. Command of the sovereign कहां पर है? Right? Legal positivism. Legal positivism मतलब आपके ऑस्टिन जी आ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है? सो यू हैव टू अंडरस्टैंड, ये आपको धीरे धीरे बिल्ड होगा. इट्स नॉट ए ग्रेट थिंग. आज अगर आप आंसर नहीं कर पाओ, दैट्स नॉट ए ग्रेट थिंग, ठीक है? उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता. आप धीरे धीरे यू विल गेट टू अंडरस्टैंड. नाउ हियर व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड. नाउ व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन इज दिस? एक मेरा फंडामेंटल अगर क्लियर है उससे बन सकता है. इस क्वेश्चन का आंसर मुझे अगर पॉलिटिकल सॉवरेनिटी क्या है उससे क्वेश्चन का आंसर बन सकता है. यस और नो? Yes or no? If I know which school talks about the political sovereignty, will I be able to answer this question? Will I? Everyone करो, not direct message मत करना. But अगर मैं political sovereignty अगर मुझे पता चल जाता, if I knew that, will I be able to answer? Simple, ठीक है? तो मेरा फंडामेंटल में एक चीज है. A norm cannot be become legally valid unless its content is fair and just in accordance to the which school? A norm cannot be become legally valid unless its content is fair and just in accordance to. A fair and just related to some. Okay? मैं क्वेश्चन आंसर में नहीं जा रहा हूं, but if you know fair and just is related to which school, do you know fair and justness is related to which school? Do you know fair and justness related to which school? Fair and justness, reasonableness, yes, philosophy. कौन से स्कूल से आते हैं? कौन से स्कूल से वो फॉलो होता है जी? सौरभ, कौन से स्कूल के फिलोसफी में आता है वो? यस, फिलोसफी डेफिनेटली. बट कौन से स्कूल में? एवरीथिंग इज फिलोसफी. Saswat is saying natural law. I am not giving the answer. Don't get me wrong. I am just asking you the question. Fair and justness कौन से स्कूल में आते हैं? Natural law. True. I am not giving you the answer. I am just giving you कि मुझे किस चीज को समझने के लिए कौन से चीज को समझना पड़ेगा. That's the one thing that I am giving you the answer. अच्छा. Here another thing. This is the another tricky part. और इसके बारे में बताऊंगा. According to whom? Okay, अच्छा. Principles requiring that law can be general, public, prospective, coherent, clear, stable, practicable are indispensable to law making. ये आपके direct passage से question है. They have argued that law must be in tune with certain this to the law making. देखो, एकदम पूरा उठा के दिया हुआ है. अगर if you read the passage, you will be able to answer this. Okay. Another question is that I mean simply that history in illuminating the past illuminates the present and in illuminating the yes दोनों present लिखा हुआ है and the future. Opined by this, another kind of question is getting asked. Note it down. You just don't think too much. आप देखो किस type of questions आ रहे हैं. एक मेरे कॉन्सेप्ट से बन रहे हैं, एक सर एक लंबा सा कोड दिया हुआ है उससे क्वेश्चंस आ रहे हैं, एक पैसेज से क्वेश्चन आया है, एक और एक कोड दिया हुआ है, और एक द लाइफ hasn't been अच्छा life of law hasn't been logic, it has been experience, it is stated by this. क्या समझ में आया? 6 क्वेश्चन देखे हो, नोट क्या किए हो इसमें? व्हाट हैव यू नोटेड इट डाउन? 6 क्वेश्चन से क्या नोट किए हो आप? व्हाट हैव यू नोटेड इट डाउन? 6 क्वेश्चन से थिंक इट थ्रू, दिमाग से सोचो. 6 क्वेश्चन से व्हाट हैव यू नोटेड इट डाउन? क्या समझ में आया 6 क्वेश्चन देख के? किस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आ रहे हैं? व्हाट आर द काइंड ऑफ क्वेश्चन जनरली आस्क्ड? पहला आ रहा है कोट्स, मैं यहां पर लिख नहीं पाऊंगा फिर भी मैं लिख रहा हूं. एक आ रहा है कोट्स, एक आ रहा है कॉम्प्रीहेंशन से, एक आ रहा है अंडरस्टैंडिंग से. एम आई राइट एवरीवन? एम आई राइट?
Is this the three kinds of question have you got from the first passage? एक quotes, एक comprehension से जो मेरे पढ़ के आंसर हो सकता है, और what are the other things? The other thing is the understanding से. अच्छा, ओके सर, फाइन ट्यून, समझ में आ गया. अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है? व्हाट आर द थिंग्स टू बी अंडरस्टूड हियर इन द नेक्स्ट क्वेश्चन? ये लॉ एंड मोरालिटी का है, ठीक है, दिस थिंग इज देयर. इसमें भी अगर आप देखोगे, ठीक है, इसमें बेसिकली ऑल द क्वेश्चंस आस्क्ड फ्रॉम द पैसेज इटसेल्फ. अगर आप लॉ एंड मोरालिटी पैसेज एंड कॉन्सेप्ट्स है, नो कोट्स, पैसेज एंड कॉन्सेप्ट्स. पैसेज एंड कॉन्सेप्ट्स मतलब एक कॉम्प्रिहेंशन से आ रहा है, एक है आपके जनरल अंडरस्टैंडिंग से आ रहा है. देयर इज नो कोट्स एज सच हियर. यस और नो? इज देयर एनी कोट्स? नो, देयर इज नो कोट्स. तो हम लोग क्या डिड्यूस किए? व्हाट हैव वी डिड्यूस सो फार? व्हाट हैव वी डिड्यूस सो फार? एक कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन आ रहा है. दूसरा क्वेश्चन कहां से आ रहा है? व्हाट आर द अदर सोर्सेस ऑफ क्वेश्चन? अदर सोर्सेस ऑफ क्वेश्चन इज द जनरल अंडरस्टैंडिंग. नाउ कॉम्प्रिहेंशन समझने के लिए मुझे जनरल अंडरस्टैंडिंग चाहिए, व्हिच इज इक्वली ट्रू. यस और नो? यस और नो? यस और नो? If I need to understand the what Lon Fuller has said regarding law and morality, for that I need to have the basic understanding of law and Fuller debate at least, right? मुझे इतना समझ में आना चाहिए, नहीं तो मैं वहां पर क्या लिखा हुआ है totally bounce, everything will go above my head, right? So one of the most fundamental thing of this, इसके दो पार्ट है. अभी मैं मेन चीज में जाऊंगा. इसके दो पार्ट है. व्हाट द फर्स्ट पार्ट इज द बेसिक अंडरस्टैंडिंग. ओके, बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ जूरिस्प्रूडेंस. एक है कॉन्सेप्ट्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस, ठीक है, जो आप देखे हो. इस कॉन्सेप्ट में आपको दो तरीके से समझना पड़ेगा. एक है एनालिटिकल. ओके, मैं लिख नहीं पा रहा हूं क्योंकि मैं आई एम यूजिंग माय हैंड टू राइट इट. सॉरी फॉर बैड हैंडराइटिंग, ठीक है. एंड दूसरा है रिमेम्बरिंग. क्या समझे? मेरा जो कंटेंट है, मेरा जो नॉलेज है, which is going to be divided into two parts. एक कॉम्प्रिहेंशन को समझने के लिए मेरा एनालिटिकल अंडरस्टैंडिंग ठीक होना चाहिए. दूसरा पार्ट है रिमेम्बरिंग पार्ट. डिड यू गेट व्हाट आई सेड? डिड यू गेट व्हाट आई सेड? सबको समझ में आया? टाइप यस. एक है रिमेम्बरिंग पार्ट, एक है आपके एनालिटिकल पार्ट जो आपके कॉम्प्रिहेंशन को समझने के लिए करेगा, ठीक है. नाउ कैन यू स्कोर गुड मार्क्स without any one of the things, either remembering or either analytical? Can you score good marks without any one of the things? No. हर सब्जेक्ट का ना बात अलग है. इस सब्जेक्ट का बात अलग है. इस सब्जेक्ट्स में आपको रिमेम्बरिंग करना पड़ेगा. देयर आर सर्टेन पोर्शंस यू हैव टू जस्ट गो थ्रू. रिमेम्बर कोट्स के नाम, लैटिन मैगजीन्स आपको देखना ही पड़ेगा. देयर इज नो वे आउट. दे आर गोइंग टू आस्क, यू हैव टू रिमेम्बर. There are certain portions which can be deduced from the comprehensions and can be answered with your basic understanding of law from the jurisprudence itself. You need both the things. This is the first and foremost thing you need to understand about this subject. अगर आपका ये वाला सब्जेक्ट बोले सर कितना पढ़ना पड़ता है, कितना रिमेम्बर करना पड़ता है सर, बट इसका नेचर ही ऐसा है, इसके क्वेश्चन पेपर ही ऐसा है कि इसमें दोनों चीज ही आपसे टेस्ट किया जाएगा. Both the things will be tested and both the things you have to answer. Will there be risk? Absolutely there will be risk. Will there be question? 2018 का क्वेश्चन आप अगर उठाओगे, you'll get to see there 10 questions, hardly 1% of the student got 1 marks out of 10 marks.
आप सोच सकते हो 2018 का पेपर उठाओ, आप क्लैट पीजी का पेपर उठा के वो 10 जूरिस्प्रूडेंस का क्वेश्चन देखो, अभी नहीं नवंबर में देखना, डिमोटिवेट हो जाओगे। अब बोलो सर देखना ही क्यों, तो फिर now that's the beauty of jurisprudence. Here the beauty and the risk, both factor, both will go hand in hand in jurisprudence. Passage से क्वेश्चन आ रहा है, it's a very good thing. You have to just read, you have to deduce the answer better. उतना better है, जितना रिमेम्बरिंग पार्ट से कम पूछा जाए उतना बेटर है, बट दैट डजंट मीन यू हैव टू रीड द रिमेम्बरिंग पार्ट, यू हैव टू रीड द रिमेम्बरिंग पार्ट. So whatever I have shared with you so far, everybody understood this, a basic understanding of the jurisprudence. Has it given any clarity to your thought process of how to tackle jurisprudence? इससे आपको कुछ समझ में आया है? Whatever I have shared with you, मैं अभी तक आपके साथ जो शेयर किया उसमें आपको has it given a at least some point of अच्छा ये subjects ये मुझे ये करना है, ऐसे पढ़ना है इसको. Has it given some kind of just mental clarity? Okay, I need to go ahead with this subject in this fashion. There is no any other way out. Has it given any query so far? Whatever I have talked about, जो भी चीज मैं बोला हूं अभी तक कुछ क्वेरी है? Any query? Okay, now the most important thing that you have to understand here, this is the first and foremost thing that I have shared with you. ठीक है, अच्छा ये कहाँ गया? अच्छा, अभी मैं आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग दिया, अभी मैं आपको थोड़ा फैक्ट्स में लेके जाऊंगा, मतलब थोड़ा कंटेंट, आज के कंटेंट में लेके जा रहा हूं. ठीक है, तो सो फार जूरिस्प्रूडेंस के साथ हम लोग थोड़ा जानेंगे. ठीक है ना, जूरिस्प्रूडेंस मेरा पढ़ाने का जो मकसद है वो जानते हैं. जूरिस्प्रूडेंस कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं दैट यू हैव अंडरस्टूड, बट व्हाट आई एम गोइंग टू टीच फ्रॉम द जूरिस्प्रूडेंस इटसेल्फ, उसके बारे में मैं थोड़ा आपके साथ 2-3 पॉइंट शेयर करता हूं. सर जूरिस्प्रूडेंस इस क्लास से आप क्या डिड्यूस कर सकते हो, इस क्लास से आप क्या ले सकते हो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज. पहला जो है, हम लोग जूरिस्प्रूडेंस एग्जाम के लिए पढ़ेंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है. दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज, jurisprudence is the basis of all law. If we understand jurisprudence, more or less we understand various laws itself. ठीक है, तो अगर आप jurisprudence के फंडामेंटल्स आप अगर अच्छे से पढ़ोगे, समझ में आएगा आपको, तब आपके बाकी लॉ में भी पकड़ बनेगा. तो मेरा जो फंडामेंटल चीज है, एक तो आपको jurisprudence पढ़ाना, दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपके दूसरे सब्जेक्ट्स के हाउ टू थिंक लॉ, और क्वेश्चन पेपर के लिए कॉम्प्रिहेंशन के लिए मुझे कैसे सोचना है वो बिल्डअप करना. बिकॉज विदाउट दैट यू विल नॉट बी एबल टू क्रैक द एग्जाम. दैट्स अनदर फंडामेंटल थिंग दैट यू हैव टू क्रैक एंड अंडरस्टैंड दैट थिंग. समझ पाए आप लोग? तो मेरा एक मकसद है जूरिस्प्रूडेंस आपको पढ़ाना, दूसरा मकसद है हाउ टू थिंक व्हाइल सीइंग द कॉम्प्रिहेंशन, हाउ टू थिंक एज ए लॉ स्टूडेंट, ये इसको समझना. और थर्ड चीज है आपको प्रैक्टिस करवाना. ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर जूरिस्प्रूडेंस एंड आल्सो फॉर अदर थिंग्स. वो तो आप वीकली टेस्ट दो गई, मेरे क्लास में आपको एक्स्ट्रा एमसीक्यू टेस्ट भी मैं करवाऊंगा, टू रीडिंग स्पीड बढ़ाने के लिए, टू और आपके बाकी चीज करवाने के लिए, कॉम्प्रिहेंशन आप कितना जल्दी समझ पा रहे हो उसको करने के लिए. ठीक है, तो दैट्स हाउ यू सी दिस क्लास. डोंट सी दिस क्लास एज फॉर द सेक ऑफ जूरिस्प्रूडेंस के 10 मार्क्स. See this class as a foundation for all the law के मैं कैसे comprehend कर पाऊं एक पैसेज को, उस हिसाब से इस पेपर को देखना, इस क्लास को देखना. You will be able to extract more out of the class. Did you understand what I said? Did you understand? समझ पाए इस क्लास को कैसे देखना है? समझ पाए आप? Okay? So far any query? कुछ पूछना है? किसी को कुछ पूछना है? Anyone wants to ask anything? Is it crystal clear to you so far? Is it crystal clear to you? Okay. Now, अभी मैं आपको इसके अंडरस्टैंडिंग में जाता हूं. ठीक है, पर सर अंडरस्टैंडिंग क्या है? अंडरस्टैंडिंग इज दिस
What is jurisprudence? पहला सवाल. What is jurisprudence? Write it down. What is jurisprudence? What do you know? Jurisprudence क्या है? Jurisprudence का definition क्या है जी? What is jurisprudence? What is jurisprudence? अरे आपके जो yes, Karthik is knowledge of law. Yes, you will say no problem. Say it. I am going to ask question. ये तो मैं start कर रहा हूँ. Juris law. Yes. पिन करना चाहता हूँ इसको. Yes. What is jurisprudence? Understanding law. Okay. Basic principles of law. Basic principles of philosophy of law. Okay. Yes, yes. Everybody. Whatever you have. Science of law. That's great. It's also arts of law. Yeah. Not only the science. It's the philosophy, arts, science, history. All are true with the jurisprudence. Yeah. Wisdom. Yeah, true. पहला सबसे important चीज, jurisprudence is the knowledge of law. That what we understand from the very first word of any book that we open up. हम लोग परांजा पे खोले, अवतार सिंह खोले, whatever the फलाना ढिमकाना book खोले, हम लोग को पहला मिलता है knowledge of law. Am I right? Am I right? Knowledge of law. Yes. Yes, am I right? Knowledge of law. मेरा next question है बहुत ही अच्छा, बहुत ही easy. What is knowledge? सर ये सवाल तो कोई नहीं पूछा था. सर ये क्या, ये कौन सा सवाल है? व्हाट इज नॉलेज? नॉलेज तो नॉलेज है सर, बट व्हाट इज नॉलेज? नीड सेइंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट. अंडरस्टैंडिंग. सोचो सोचो, व्हाट इज नॉलेज? accumulation of facts. Okay, अब देखो any fact or information get to understand. अभी देखो इस एक वर्ड में पूरा jurisprudence का राज छुपा हुआ है. You will get to understand now in the next probably half an hour, 1 hour, whatever we're going to discuss. A simple word is a knowledge. What is knowledge? What is understanding? What is accumulation of facts? Are understanding and accumulation of facts important? आपके इस हाफ एन आवर 1 आवर में ना आपका बहुत कुछ आप समझ पाओगे jurisprudence कैसा है. Skilled acquired through experience or education. You are going for the skills now. Oh, Amisha is getting into the forms of awareness. Ma'am, that's grace. You were going for that form of awareness. I'll get into it definitely. ठीक है, but you are getting into awareness. Okay, knowledge is kind of an awareness. Definitely knowledge is awareness. इसमें कोई doubt नहीं है. मेरा next सवाल है, how do you gather knowledge? How do you gather knowledge? ये सवाल शायद आपसे कोई पूछा नहीं होगा. Think it about. How do you gather knowledge? Establishing the relationship between the facts. सोचो नॉलेज कैसे गैदर करते हो आप. I'll make you think like hell. You haven't thought law like this. By experience, right? Through experience, by studying or experience. Look at this, the words that you are getting. One is studying, one is saying experience. By different sources, yes, true. See, look at the words that are coming out. All are related to only one word, that is knowledge. Ravi is saying through observation. Amisha is saying that by direct perception. Did you understand? This word knowledge has all the knowledge in it. Different sources like precedent, norms, experience. Acha, okay. Definitely, Priyanka. Okay. Now, one is saying knowledge.
So if we accumulate all those things from all the different sources that we have right now in front of us, तो हम लोग क्या क्या गैदर किए ये थोड़ा देख लेते हैं. Someone is saying knowledge means understanding. Okay. Someone is saying knowledge is facts. Knowledge is information. Knowledge is skills acquired through experiences. Knowledge is information gained through learning. तो एक साइड बोल रहा है सिर्फ नॉर्मल फैक्ट्स दैट वी लर्न, मतलब ये किताब है, अगर मैं मान लेता हूँ ये किताब है, इसको मैं पढ़ के जो नॉलेज ले रहा हूँ दैट इज द नॉलेज. समवन इज सेइंग, एम आई राइट? ये मैं किताब है, इसको मैं उठा के पढ़ रहा हूँ एंड आई एम गेनिंग द नॉलेज. सम ऑफ यू आर सेइंग दैट इट इज द नॉलेज, if that is the book. Am I right? Am I right? As some of you, from some of your point of view, am I right? Achha. Some of you are saying Ravi is saying, अरे इसको everyone करो ना. Knowledge means दिमाग का जिंदा होना. Yeah, definitely. Knowledge means the cognition, right? Knowledge means the cognition. Now, another very important thing. अच्छा. Knowledge, अगर आप पढ़ोगे, ठीक है, knowledge means it's a very important thing, cognition. पूरा डीपली आपको समझना पड़ेगा whatever I'm going to say to you right now. अगर यहाँ पर कोई एक बंदा देवजीत, मैं मान लेता हूँ देवजीत, ठीक है, देवजीत and whatever I'm going to give you an example. First and foremost thing, मेरे क्लास का रूल है, don't get offended. I'll give such weird example, but these examples will stick to your brain. ठीक है? Don't get offended. Okay? अब देवजीत जाके नीलय को चाइनीज में गाली देता है. For the time being. Think it out. देवजीत गया चाइनीज में गाली दिया नीलय को. अब my question is, will नीलय able to understand anything? No, sir. No. Only one condition. Yes or no? Yes or no? Tell me. I'll get into the condition. Okay. Until Nilay understands Chinese. Right, Priyanka. Am I understand? So नीलय अरे चलो एक दिन होगा देवजीत नीलय के साथ, ठीक है. We are going to have Chinese cuisines. So think about it. देवजीत जाके नीलय को बोला, चाइनीज में गाली देके आया. नीलय को कुछ समझ में नहीं आया, nothing. नीलय हंसते हंसते वहां से निकला, बंदा अच्छा बोल रहा है यार. He is just, कितना सही बंदा है देवजीत. We are best friends. अब देवजीत जाके गाली बोल के आ गया. But the thing that you have to understand, नीलय उस चीज को समझ ही नहीं पाया. आपके हिसाब से नीलय doesn't have the understanding of Chinese. Am I right? And that's why he does not understand what Devjit just said. Yes or no? Yes or no? Right. Now think it through. Now here, the very important part, knowledge. Nilay doesn't have the knowledge. आपको इससे क्या समझ में आया कि knowledge works on certain set of what? Knowledge works on certain set of what? Amata is saying facts. Any other thing? Nilay doesn't understand what Chinese is. And that's why he's not able to make out anything, whatever Devjit said. इसका मतलब ये है नीलय का नॉलेज ही नहीं है चाइनीज का. बट नॉलेज नहीं है मतलब क्या है, उसके कॉग्निशन में ही नहीं है चाइनीज, उसके ब्रेन में ही चाइनीज नहीं है. अगर उसको हिंदी में गाली देता तो समझ में आता. और उसको शायद देवजीत को जाके हिंदी में गाली दिया, देवजीत को 2 घूसा मार दिया, क्योंकि उसके कॉग्निशन में आया. एंड देन ही विल रिएक्ट. थिंक इट थ्रू. दिस इज द नॉलेज. दिस इज वी आर टॉकिंग अबाउट द नॉलेज. नाउ इफ यू थिंक
how that knowledge is generated. ये knowledge कैसे आ रहा है? Amartya is saying facts. Is it only the facts or something more? Experience, right? एक आ रहा है. Look at the knowledge. Knowledge is, research is a different kind of word, if we say so. ठीक है, थोड़ा बीच में चला गया. ठीक है, but if we understand, one is experience. Experience is one of the things, because Nilay hasn't had the experience of Chinese itself. अगर उसका experience होता, then definitely he would have countered with something. Okay. So knowledge is set of theoretical or practical experiences that we gather. What is that? Theoretical or practical. हम लोग मागा भी कर सकते हैं, हम लोग सेंसेस से ले भी सकते हैं. The reason being knowledge. Suppose you wake up in the morning and while waking up you are hearing birds chirping. By hearing the birds chirping, you will be able to understand which bird is chirping. Am I understanding? If you knew that bird's voice already existing in your mind, then you'll be able to understand which bird is chirping in the morning while hearing. आपके कॉग्निशन से, आपके प्रीलोडेड मेमोरी से, आपके प्रीलोडेड नॉलेज से, आपके प्रीलोडेड एक्सपीरियंस से आप बता सकते हो which bird is chirping. Am I understanding or am I getting into too much depth? मेरे क्लास में थोड़ा बहुत बोलना के मुझे समझ में नहीं आ रहा है. I'll give you another example. Did you understand what I'm saying to you? हम लोग नॉलेज के बारे में डिस्कस कर रहे हैं. Everyone in the understanding what I'm saying to you? Yes. Yes. Devasmita is saying, which part you didn't understand, Devasmita? What I am saying, knowledge is pre-recorded memory, ma'am. Nothing else. Knowledge is pre-recorded memory. If you don't understand that thing, आपके नॉलेज में नहीं, अगर आपके मेमोरी में नहीं है, आप उसको फैदम नहीं कर पाओगे. क्या समझे? अगर आपके एक्सपीरियंसेस में नहीं है, आप समझ नहीं पाओगे. Now reason being, आप एक्सपीरियंस लेते कैसे हो? How do you? By perception itself. How do you perceive? Suppose आज आप फर्स्ट ईयर में जब सोचे थे, आप परसीव कर रहे थे मुझे करियर के लिए इतना कॉन्शियस होना था. शायद you were not there, you were not that conscious about your career. When you come to the 5th year, now you're conscious about your career and you're taking the decision. Now that coming into your cognition, आपके कॉग्निजेंस में आ रहा है वो चीज. And जब तक वो नहीं आएगा, you will not be able to understand what you have to do. That what I mean to say, knowledge is the preloaded memory. अगर नहीं है, कुछ नहीं है. तो jurisprudence is the knowledge of law, right? तो अगर मैं आपको बोलूं jurisprudence is the preloaded experiences and the memory of law, इसको थोड़ा डिकोड करके हम लोग ये बता सकते हैं, jurisprudence is the preloaded experiences and memory of law. Can we decode the definition to much simpler version? अभी देखो और better understanding लेंगे इसको. Can we conclude that, sir? But there can be thoughts or ideas that can one create things his own. Are that not knowledge? Definitely. But Amartya, how that thought generates? Have you thought how that thought generates? Can you think a thought in Arabic? Can you think a thought in Chinese? You can only think a thought in Hindi or English. The thing you know, that thing you have the knowledge of. Did you understand? So what you call thought, it is a part of the knowledge. ये मेमोरी से ही आ रहा है. अगर वो मेमोरी नहीं है, अगर मैं आपके ब्रेन को अभी वाइप आउट कर देता हूं, will you be able to think? कोई बच्चे को हैंड होल्ड करके सिखाना पड़ता है
how to walk because he or she doesn't know how to walk. उसके पास होता, उसके जेनेटिकल मेमोरी में है, दैट्स इन डॉर्मेंट स्टेट, बट उसको कॉन्शियस में लाना बहुत जरूरी है टू मेक हिम और हर वॉक, एंड दैट व्हाट वी बेसिकली facilitate that child to do. Everyone understanding? Are we here? Is it getting too much? Is it getting too much? Everyone understanding what I'm saying? Jurisprudence is the knowledge of law. This is the first and foremost thing. Devjit, are you understanding or not? I am telling you again, I'm going to make you understand again. Are you understanding? Yes, sir. I replied to the question of is it getting too much? Yeah. No, sir. No, sir. I am understanding. Yeah. So this is the thought. This is the knowledge. Now, अभी देखो गेम अभी चेंज होता है. सर आप अगर बोल रहे हो कि jurisprudence is the experiences that human being have of law during different periods of era. अभी देखो चेंज क्या होता है. Jurisprudence is experiences of human being had in different time zone or different era in different society. Can we say that? Can we say that? Yes. Jurisprudence is different experiences of different human beings belonging to different societies and in different time zone or different country. Can you say that? Everyone understanding the definition that I am sharing with you? Understanding the definition I am sharing with you. Everyone, please tell me. Yes. Everybody. Yes. Okay. किसी को समझ में नहीं आया क्या बोला मैं? Jurisprudence is the experiences of the law or experience of the law of human beings of different societies, of different time zone, of different countries. If you write it down, isn't it the different school that we are talking about? Guys, isn't it the different school that we are talking about? Right. Ab dekho beauty. Yes, sir. Look at the beauty of it. 18th century, Austin. What is law? What Austin said. Law is the command of the sovereign. Think it through how Austin perceives the law. Law is the command of the sovereign. Am I right? What he thought? Law is the command of the sovereign. How he perceives the law? He perceives the law as command of the sovereign. What is command? Obligation from the political superior to political inferior. Am I right? Command from political superior to political inferior. अब उस टाइम के सोसाइटी देखोगे where the state is getting formed, ऑस्टिन के टाइम तब आ रहे हैं कि स्टेट बनाना चाहिए, उसके बाद डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट होना चाहिए एंड एक पॉलिटिकल सुपीरियर होगा जो बेसिकली रूल करेगा सोसाइटी के ऊपर एंड ही सीज द लॉ. अच्छा लॉ तो वही है दैट पॉलिटिकल सुपीरियर जो बंदा ऊपर बैठा हुआ है व्हाटएवर ही सेज कि वी हैव टू कमिट जेनोसाइड टुडे, दैट इज द लॉ. वो नेक्स्ट डे तो वही हो रहा है. अगर वो पॉलिटिकल सुपीरियर बंदा बोल रहा है कि एसेंशियल कमोडिटीज को होल्ड करना है, दैट इज द लॉ. पॉलिटिकल इंफीरियर हैज टू. अगर वो पॉलिटिकल सुपीरियर बोल रहा है कि आपके जो भी इंसान हो आपको वॉर में जाना है, दे हैव टू बाइट बाय दैट. Is it the law? Is it the perception? Is it the experience? How Austin is perceiving? You have to understand. You have to look into the Austin eye and think, Austin बंदा तो यही देख रहा है. Austin देख रहा है यार यही तो लॉ है. Yes. आप अगर मोनार्क बोलो ठीक है, but that's how Austin is Austin कुछ अलग चीज नहीं लिखा है. Austin जो देखा है उसके एक्सपीरियंस उसके परसेप्शन वही लिखा है. ऑस्टिन कुछ अलग चीज परसीव भी नहीं कर पाया था उसके टाइम जोन में. वो कैसे बोलेगा कि इट्स ए हिस्टोरिकल स्कूल? कैसे बोलेगा इट्स अ डिफरेंट थिंग? नहीं हो सकता है. ऑस्टिन सीज दिस थिंग, ऑब्जर्व्स इट एंड इट्स अ थिंग दैट ऑस्टिन बोलता है इट्स अ साइंस. व्हाई? बिकॉज ऑस्टिन एंड ऑल्सो पॉजिटिव लॉ,
the reason positive law coming from the Austin itself, you get to understand कि ऑस्टिन जब देखता है कि वहां पर कुछ जस्ट फेयरनेस की बात नहीं हो रही है जी, देयर इज नथिंग जस्ट और फेयरनेस हियर, वन गाय हु इज सुपीरियर who takes the decision, maybe who insists, maybe for the superior good. बेंथम थोड़ा अलग दिया है उसको थ्योरी, उसको यूटिलिटेरियन इन थ्योरी में मोल्ड किया है, बट मोर और लेस पॉलिटिकल सुपीरियर को जो लगता है वो करेगा, वो कमांड देगा, एंड पॉलिटिकल इंफीरियर हैज टू अबाइड बाय दैट. सिंपल. समझ पाए ये? डिड यू अंडरस्टैंड द हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट वाला थिंग? एवरीवन अंडरस्टूड? अब देखो, यू विल गो टू द ऑस्टिन आई एंड यू हैव सीन द ऑस्टिन आई. बोला अच्छा, ऑस्टिन तो कुछ देख ही नहीं पाएगा. ऑस्टिन थोड़ी एयरलिस्ट के आंख से देखेगा, नहीं देख पाएगा. उस बंदे को परसीव ही लॉ ऐसे हो रहा है, वो बंदा देखेगा ही ऐसे ना. वो देख रहा है आसपास, दिस इज द सेम थिंग हैपनिंग. कमांड इज गिवन, कमांड इज बीइंग फॉलोड. व्हाट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट? इफ आई से what how the society is being run, society is being run by commands, nothing else. If you ask Austin will say society is run by commands, nothing else. Society has two type of people: political sovereign, political inferior, and political superior giving the commands to the political inferior, and that's how society is run. Did Austin neglect the customs altogether? Did Austin neglect the philosophical aspect to it? बोला यार फालतू का चीज है. Did Austin neglect? Anybody who has read the concept, did Austin neglect? आप अगर पढ़े होंगे ऑस्टिन थोड़ा बहुत, आपको शायद याद नहीं होगा. That's fine, okay, no problem. Now, another very important part. Now coming to the next, you will get to see. मैं आपको थोड़ा बहुत, मैं आपके understand. So far, whatever I have talked about, have you understood? Are you understanding, everyone? Please give me yes. Please Yes, give sir. me yes. Yes. Are you connecting with them? Are you connecting with me? Whatever I am sharing with you, right? अच्छा, अब देखो, एक बंदा हुआ करता था. This guy is actually the gem of the jurisprudence itself, but nobody talks about it. ठीक है? Coming to the historical school, ठीक है? अभी आप बोलोगे सर, तो फिर आप जो बोल रहे हो ऑस्टिन की बात, ठीक है? ये ऑस्टिन cannot be living in a very very ओल्ड सोसाइटी. जो सोसाइटी बॉन्ड कर रहा है वहां पर तो ऑस्टिन नहीं रह सकता है. ऑस्टिन एक वेल फॉर्म सोसाइटी में रहा होगा जहां पर ऑलरेडी सोसाइटी रन हो रहा है, क्योंकि सोसाइटी गवर्नमेंट बनाने की सोच रहा है, तभी एक सोसाइटी लॉ की बात ऐसे कर सकता है. एक नॉर्मल सोसाइटी में, स्टैटिक सोसाइटी में, जहां पर सोसाइटी फॉर्म हो रहा है, जहां पर हम लोग कर्ता की बात कर रहे हैं, हेड ऑफ द फैमिली की बात कर रहा है, वहां पर हेड ऑफ द फैमिली जो बोलेगा वही तो लॉ है ना. ओल्ड सोसाइटी, बहुत ही पुराना सोसाइटी में, वहां पर क्या था? वहां पर कुछ नहीं था. वहां पर सारे चीज एक ओल्ड सोसाइटी से बिल्ड हो रहा है. ठीक है? तो यहां पर हिस्टोरिकल स्कूल में ब्यूटी स्टार्ट होता है इज फ्रॉम द स्टैटिक सोसाइटी. हेनरी मेन, हैव यू हर्ड द नेम ऑफ हेनरी मेन? हिस्टोरिकल स्कूल में स्टैटिक सोसाइटी एंड प्रोग्रेसिव सोसाइटी. इफ यू अंडरस्टैंड दैट सोसाइटी, टू सोसाइटी ना, वो दो सोसाइटी आपको पूरा गेम समझा सकता है पूरा जुरिस्प्रूडेंस का. दैट गाय इज अ जीनियस. That guy was a genius, but people rarely think that guy. We think about Bentham and Austin and this guy, but that guy has given the roadmap to how to understand the jurisprudence. If you think about the historical school, you think about static society. If you think about the realist school, आपके analytical school, you think about the progressive society. उस स्टैटिक सोसाइटी में कभी पॉजिटिविस्ट बात नहीं करेंगे, रेयरली.
So whereas in historical school आप क्या करोगे? Historical school में when the jurisprudence is the knowledge of law, right? What does Savigny said? Savigny का law का definition क्या था? What was Savigny's law definition? What was Savigny's definition of law? Anyone? Volgeist. Have you remember Volgeist? General consciousness of the people. Have you remembered that thing? Guys, have you remembered? Have you remembered Volgeist? Law as a national Volgeist याद है? याद नहीं है? No problem. Some of you are saying the general awareness. अब देखो, आपको अगर याद नहीं है, historical schools talks about the law as a general consciousness of the people. One guy is saying law is the command of the sovereign. Historical school is saying law is the consciousness of the people. What is consciousness now? What are you saying? What is consciousness now, sir? Consciousness is nothing but, think it through. आपके रेपिस्ट को डेथ पेनल्टी की बात हम लोग 2000 से कर रहे हैं, 2005 से कर रहे हैं, 2006 कर रहे हैं, 7, 8, 9, 10, ठीक है? That thing was there, but in 2013 when that incident happened of Damini rape, I hope Delhi gang rape that happened, you people remember that thing in 2013, right? That triggered and that bring the general consciousness of the people to bring death penalty into the norm or into the society. उससे पहले क्या consciousness नहीं था? Consciousness not was taking the form of law. Consciousness was there, but consciousness was scattered. कुछ लोग मानते थे, कुछ लोग नहीं मानते थे. That's how the general consciousness of people evolved. कैसे evolve हुआ? 2013 में death penalty आया रेप के लिए. 2017, 18 privacy of the people. अच्छा, आप बताओ, हम लोग privacy जब पढ़ते हैं, how many years of cases that we have read? 1950, 1961 खड़क सिंह के बात करते हैं. Have we? खड़क सिंह के बात करते हैं. Yes. हाँ. But think it through. यहां पर कितना चीज है आपको समझने के लिए. 1916 से लेके प्राइवेसी लॉ आया कब? When did privacy law केस पुट्टस्वामी कब आया? क्या समझ में आया आपको? This is the part of the historical school. Think it through. 17, 18 जो भी हो, जब तक consciousness of the people will not emerge, law नहीं बनेगा. As per the historical school, that what historical rule school perceives. आप लोग धीरे धीरे अभी समझ पा रहे हो क्या मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूं? एक एक पार्ट. Are you connected with me now? Are you connected? Yes. चीजें उस सीन से देख पा रहे हो? अच्छा, इन लोगों का एक्सपीरियंस ही ऐसे हुआ था, and that's why they see the law in that their fashion itself. It's nothing uncommon. There is nothing limited here. It is that the way they perceive the law. So far, any query that you people want to ask? Any query that you people want to ask? कुछ query है जो पूछना है? छाया, देवस्मिता, दिशा, निपुण, प्रेरणा, anybody? Anybody want to ask anything? Anybody want to ask anything so far, whatever we have talked about? Priyanka, Srishti, Devjit, anything? कुछ पूछना है? ठीक है? When you said static society, can you just explain once more how do we connect? How do we connect the static society, right? Yeah, मतलब different. You said to understand different schools, you should understand what is a dynamic society. and a I'll just explain in the मैं historical school में explain करूंगा ही, but मैं आपको थोड़ा बहुत explain करता हूँ ये चीज. If you go to the static society, there are 4 layers to it. Okay, the first one, ठीक है, आप करोगे
when वो नेचुरल स्कूल से आते हैं, the law is coming from the divine. Did we understand? हम लोग तो लॉ यही पढ़ते थे, तो लॉ कहाँ से आ रहा है? Law is coming from the divine. Yes or no? Right? Yes. That's how the law came. Then law coming from the divine king के through, आप उसको ये हुआ. Then उसके बाद वो custom बना. ठीक है? Second part is custom. I am getting into technicalities here, जो मैं historical school के समझाऊंगा. Custom से बाद आया priest who are preachers, different priests में. And then आया उसके crystallization, different scriptures and everything. And then आया, ये था static society. Static society में ना divine law, justness, fairness, justice, custom, ये सारे चीज आ जाता है. Natural law, historical school, ये सारे static society के part है. Whereas coming to the progressive society, where equity, legislation, all those things are concept of progressive society. ये जब society develop हुआ, then we talk about, अच्छा नहीं, हम लोग क्या बात कर रहे हैं? Let's talk about the equity now. ठीक है? Let's talk about the equity. That's how the whole thing evolved धीरे-धीरे. Are you understanding? Okay. तो एक static society था, then progressive society. तो static society will relate to some school only. Progressive society will relate to positivism. पॉजिटिव, उसके बाद है आपके सोशियोलॉजिकल स्कूल. दो सोशियोलॉजिकल स्कूल इन बिटवीन ऑफ द स्टैटिक सोसाइटी टू प्रोग्रेसिव सोसाइटी के बीच में. एंड देन आपका रहेगा रियली स्कूल, जो लोग कोर्ट ही देख रहे हैं, सिर्फ आप जैसे कोर्ट में देखते हो. सो द पीपल हु विल सी देयर, हु प्रैक्टिस इन द कोर्ट, दे विल से दिस इज द लॉ. व्हाट यू आर सेइंग द सोसाइटी, व्हाट सोसाइटी? आई एम सीइंग व्हाट जजेस आर सेइंग, जजमेंट लॉज आर द लॉ. This is a law. This is the real school. Those people, just as homes. That's how it's they are getting into the light. तो एक टाइम जोन में एक चीज आया and एक एक्सपीरियंस लोगों ने देखा, and that's how they interpreted the law and given the definition of law as per their understanding. So that's why someone is saying law is the general conscience of the people, law is the command of the sovereign. Then someone is saying law is nothing, law is social engineering. Law is what? Law is living law, like yearly. Society में जब हम लोग देखते हैं, हर दिन चेंज होता रहा है. आज हम लोग ई कॉमर्स की बात कर रहे थे, आज से 5 साल बाद आज एआई की बात कर रहे हैं. एआई वाला लॉ आएगा, लिविंग लॉ. समझ पा रहे हो हाउ दैट इज कनेक्टेड इन द सोसाइटी? When you are going to understand nearly, you will get, अच्छा आज मैं सोसाइटी में ये बात कर रहा हूं, and कुछ दिन बाद I'm going to talk about AI, and AI के लॉ आएंगे. Is it the next thing? Yes, true. It is the next thing. So, is ALDC's living law is actually living today? Yes, it's living. That's how it's living. Are you understanding? Are you getting connected with the thing? प्राइवेसी से मैं आपको समझाया हाउ द जनरल कॉन्शियसनेस ऑफ पीपल एक्चुअली वर्क्स एंड हाउ इट इवॉल्व. कमांड ऑफ द सॉवरेन तो आप हमेशा देखते हो. कमांड ऑफ द सॉवरेन, लाइक अभी थोड़ी देर पहले दिल्ली वाला एक जजमेंट आया, उसके बाद ऑर्डिनेंस आ गया. कमांड ऑफ द सॉवरेन, उसको साइडलाइन करने के लिए. हैज इट हैपेंड? हैज इट हैपेंड? दिल्ली का जजमेंट आया, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर दे आ गया दिल्ली को, ऑर्डिनेंस आ गया. इज इट गेटिंग कनेक्टेड एवरीवन? आज तो पहला दिन है मैम. सर, इज इट गेटिंग कनेक्टेड विद द रियल इवेंट? Yes, sir. ज्यादा हो रहा है? इज इट Understanding the links. अंडरस्टैंडिंग द Links. understanding Links the of link? different events. Yes. Yes, that's a very important thing. Okay, then you'll be able to understand. Then you will do. The thing is that these dots are going to help you remember the things. जो आपको याद दिलवाने का कोशिश करेगा. हेवी तो नहीं हो रहा है सर जी? अमर्त्य, शाश्वत, are you understanding? दिशा, कस्तूरिका, everybody. जब भी बोलोगे हेवी होगा, then we will take 5 minutes break, no problem.
ओके अच्छा, सो ये रहा डिफरेंट परसेप्शन. शैल वी मूव टू MCQs? सम MCQs हम लोग थोड़ा MCQs करते हैं, इजी MCQs करेंगे आज पहले दिन. वी आर नॉट गोइंग टू गेट इनटू टू मच स्टफ. आज ऐसे सर आप लोग ना पहले दिन ही इतना मतलब बॉम्ब पे बॉम्ब गिरा देते हो, ऐसा मत करो. बच्चे हैं, थोड़ा छोटे मोटे चीज करवाओ, MCQ करवाओ, ठीक है. इजी MCQs करते हैं. कैन वी? इजी पैसेज पढ़ के MCQ करना है, नथिंग. आई एम ट्रूली के मैं टफ क्वेश्चन नहीं पूछ, टेस्ट में होगा डेफिनेटली, बट यहाँ पर नहीं जी, यहाँ पर बहुत इजी है. ठीक है, लेट्स गेट इनटू इट. एक पैसेज पढ़ के पढ़ना है, ठीक है. लेट्स डू इट. चलो yes, is it visible to you? Is it visible to you everybody? Yes, Yes, it is. sir. अच्छा, एक सिंपल पैसेज है, ठीक है. इसको थोड़ा मैं 5 मिनट दे रहा हूं. यू पीपल स्टडी दिस पैसेज प्लीज. ओके, स्टडी दिस पैसेज, देन विल गेट टू द क्वेश्चन. क्वेश्चन भी बहुत इजी है जी, ठीक है. स्टडी दिस पैसेज, एवरीबडी कैन सी इट. और शैल आई मेक इट और कुछ और ज्यादा ये करेंगे तो शायद आप लोगों को दिखाई नहीं देगा. अच्छा, ये शायद 100 है. आई होप यू आर एबल टू सी. अगर नहीं देख पा रहे हो, फोन से देख रहे हो तो इट माइट बी प्रॉब्लमेटिक फॉर ऑल ऑफ यू. अच्छा, so start reading it. Take 5 to 10 minutes. Start reading it and understanding what it is being said here. When it's done, you will tell me it's done. Okay, ये reading हो चुका सर. Let's get to the question. रीडिंग आप ऐसे करो कि टेक एक टाइमर लो 5 मिनट, उसके बाद रीडिंग करना स्टार्ट करो. बिकॉज आई एम जस्ट मेकिंग यू प्रिपेयर फॉर द एग्जाम. 2 वीकली टेस्ट होगा मुझे पता है, बट फिर भी मेरा जो इंटेंशन है साफ है पहले दिन से ही, ठीक है. जूरिस्प्रूडेंस के माध्यम से मैं आपके प्रिपरेशन के जो बेसिक स्किल्स है उसको डेवलप करवाना चाहता हूं. टाइमर लो सामने, 5 मिनट, 3 मिनट, 2 मिनट, सेट इट एंड स्टार्ट रीडिंग नाउ. The moment it's done, you will tell me done. अगर मुझे स्क्रॉल करना है तो वो भी बता देना. I will scroll below. अच्छा, ओके. एक सेकेंड कार्तिक, I will do that. Yes. Is it done? Done. नहीं हुआ. अच्छा, कार्तिकेय का हुआ है, बाकी का ये पढ़ रहे लोग. अच्छा, दूसरा मैसेज आया सर. स्क्रॉल. ओके, एनी अदर वन? और ज्यादा स्क्रॉल करेंगे तो स्क्रॉल हो जाएगा. अब स्क्रॉल करते हैं, ठीक है. स्क्रॉल कर रहा हूं मैं. एवरीवन इज डन. आई एम जस्ट स्क्रॉलिंग नाउ. ओके, छोटा सा ही पार्ट है, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है. आई होप
डन ओके दोबारा पढ़ लो रितिका इफ इट्स डन एवरीबॉडी व्हेन इट्स डन डू लेट मी नो आई विल गेट टू द क्वेश्चंस देन एक एक करके क्वेश्चंस करेंगे हम लोग ठीक है नीले डन निपुण डन प्रेरणा प्रियंका रवि रितिका सज्जत सत्विक सौरभ शाश्वत शिवंग सृष्टि सुशांत वैष्णवी वत्सल डन अच्छा ओके दैट्स ग्रेट चलो लेट्स गेट टू द क्वेश्चन पहला क्वेश्चन ये कैसा नंबरिंग देते ये लोग सॉरी पहला क्वेश्चन jurisprudence is the study of this thing बताओ पहला क्वेश्चन का आंसर क्या है everybody has it done ठीक है पढ़ पाए कौन कौन नहीं पढ़ पाए वो भी मुझे बताओगे who hasn't been able to read because that's another thing उसके ऊपर काम करना है मैम आपके ऊपर या सर आपके साथ अगर नहीं हुआ है अच्छा ओके then go to the second question तो यहां पर है which of the following is not a fundamental question addressed by the jurisprudence as per the passage सोचना as per the passage which is very very important इसीलिए मैं पैसेज दोबारा कर दिया क्वेश्चन लिखो नोट डाउन करो which is of the following is not a fundamental question addressed by the jurisprudence लिख चुके हो क्या करना है मुझे अभी आपको सी ओके as per the passage ओके बहुत बढ़िया which of the following is not a theory explained in jurisprudence मैं आपके साथ एक चीज बिल्ड अप करने की कोशिश कर रहा हूं इफ यू फॉलो देयर इज मेनी क्वेश्चन व्हिच इज आस्क्ड विद नॉट दैट हैज टू बी बिल्ड आपके डिफरेंट मतलब ये रिस्पॉन्स आएगा इंट्यूटिव रिस्पॉन्स आएगा कि नॉट बोला जा रहा है दैट इज द अनदर थिंग ओके ओके व्हाट इज द jurisprudence बहुत इजी क्वेश्चन है बहुत इजी क्वेश्चन आई हैवंट एडेड एनी टफ क्वेश्चन इन इट या What does the jurisprudence contribute to the interpretation of the law? आंसर हुआ नहीं पैसेज पे पढ़ने का पैसेज रट्टा मार चुके हो क्या आप लोग आंसर दे जा रहे हो बिना पैसेज पढ़ के हाउ सुपरमैन सुपर वुमन निकले सब समझ नहीं पा रहा हूं मैं अच्छा उसके बाद क्वेश्चन बहुत इजी है सर ये तो ऐसे कर लेंगे रुको बेटा रुको क्वेश्चन इजी है ना टेस्ट में देखेंगे तुम लोगों को टेस्ट में देखेंगे एडवोकेट बोलता है कोर्ट में देखते हैं मैं बोलता हूँ टेस्ट में देखता हूँ तुझे चलो सचित सिंह डी 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 कौन सा आंसर का डी अच्छा 1 2 3 4 कर देता हूँ मैं ये 2 क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 का अच्छा 3 4 ये 5 नंबर क्वेश्चन है पांच का डी अरे आप लोग में से कौन लोग है जो दूसरे का आंसर देकर आंसर दे रहे हो यार खुद पढ़ के दे रहे हो ना या डी डी करते रहा है सर डी है सब आंसर दे रहे हैं डी तो होगा ना उसके बाद सब तो गलत नहीं हो सकते हैं
अच्छा, अभी मेरा क्वेश्चन ये नहीं है कि आप लोग आंसर कर पाए नहीं, मेरा क्वेश्चन ये है ये पैसेज आप कितना टाइम में पढ़ोगे, हाउ मच टाइम डज इट टेक टू रीड द पैसेज? एवरीबॉडी? और पैसेज पढ़ने के बाद क्या आपको याद था जब क्वेश्चन का आंसर कर रहे थे तो आप क्या बार बार पैसेज में जा रहे थे, या यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट थिंग? दैट इज, आप क्या जब क्वेश्चन देख रहे थे यू आर एबल टू रिमेंबर द पैसेजेस दैट यू हैव रेड, और यू हैव टू गो बैक अगेन एंड अगेन एंड अगेन? अच्छा, एबल टू अंडरस्टैंड इन वन गो, दैट्स ग्रेट देवजीत। बाकी का टिल फोर्थ क्वेश्चन, अच्छा कुड रिमेंबर टिल द फोर्थ क्वेश्चन, दैट्स ग्रेट। ठीक है, देखो यहाँ पर कोई अच्छी चीज नहीं है, बुरी चीज नहीं है, आप जहां पर हो वो जानना बहुत जरूरी है, बिकॉज इफ यू आर नॉट एबल टू एक्सेप्ट वेयर यू आर राइट नाउ, यू विल नॉट एबल टू इम्प्रूव। ठीक है, कुछ देखो, हियर सम स्टूडेंट विल बी एबल टू रिमेंबर रीड फास्टर देन यू, इट्स एब्सोल्युटली फाइन, बट इफ यू आर नॉट एबल टू डू इट, लेट्स टॉक, आई एम हियर टू हेल्प यू आउट ना। आप क्यों टेंशन ले रहे हो? अब सर मेरा सारे दोस्त आगे पर आगे चले जा रहे हैं, उससे मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, इट्स एब्सोल्युटली फाइन, इट्स एब्सोल्युटली फाइन, लेट्स टॉक अबाउट इट, लेट्स फाइंड आउट द सॉल्यूशन फॉर इट। ठीक है, अभी हम लोग वही तो कर रहे हैं ना। After answering the few question, yes, no problem, needed to refer one question for one question, okay सर, यही ये पहले पढ़ा था इसीलिए कोई प्रॉब्लम नहीं हुए, बट सर कुछ न्यू होता तो शायद ज्यादा टाइम लगता। अच्छा, वो आप पहले पढ़े होते, दैट्स व्हाई, ओके दैट्स इट। अप टू 70% फॉर वन और टू क्वेश्चंस नीडेड। अच्छा, ओके, नो प्रॉब्लम। ओके, ठीक है, ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, आप कहां पर स्टैंड कर रहे हो अभी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये जानना कि मुझे पढ़ने में कितना टाइम लग रहा है, मैं कहां पर क्या हूं। वन और टू क्वेश्चन नीडेड टू रेफर। अच्छा, रेफरिंग ये बहुत ही पैसेज ना, उतना ज्यादा टफ पैसेज नहीं है, इट्स इजी पैसेज, एंड क्वेश्चन भी जो पूछा गया है बहुत ही फंडामेंटल इजी क्वेश्चन है, कैन बी आंसर, बट द क्लैट व्हेन दे आर गोइंग टू आंसर द आस्क द क्वेश्चन, उनके लिए आपको शायद रेफर करना पड़ेगा, और आप रेफर इसीलिए और करना चाहते हो कि वो श्योरिटी लाने के लिए कि जो मैं आंसर कर रही हूं या कर रहा हूं दैट हैज टू बी करेक्ट, राइट ना। तो फॉर दैट रीजन आपको शायद एक दो बार रेफर करना भी पड़े, दैट्स नॉट ए बैड थिंग, बट द थिंग इज दैट ट्राई टू अंडरस्टैंड द पैसेज फ्रॉम वन गो इटसेल्फ। ठीक है, जब आप एक वन गो में पैसेज पढ़ना स्टार्ट कर दोगे ना, आपका गेम चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा सिंपली। ओके, अच्छा, ये एक्सरसाइज करने के बाद कुछ एनीथिंग टू शेयर, एनीथिंग टू शेयर, एक्सरसाइज करने के बाद एनीथिंग टू शेयर, एनीथिंग टू शेयर, हाउ वाज इट? कस्तूरिका, हाउ वाज इट? कार्तिकेय, नीलय, निपुण, प्रेरणा, प्रियंका, रवि, रितिका, हाउ वाज इट? ये एक्सरसाइज कैसा था? छोटा सा सिंपल एक्सरसाइज, हार्डली टेक 15 to 20 minutes. What have you understood about yourself? और क्या आपको इंप्रूवमेंट करना है अभी डाउन द टाइम? खुद के बारे में क्या समझ में आया, क्या इंप्रूवमेंट करना है अभी यहाँ से? सौरभ, शाश्वत, शिवंग, सृष्टि, सुशांत, दैट्स ग्रेट निपुण। चलो, आंसर पता चले तो और समझ में आएगा कितना याद था। अच्छा, आंसर है, अच्छा आंसर आप पूछ रहे हो ना, आप लोग करेक्ट आंसर, वन का बी आंसर है, ठीक है, वन का बी, एवरीबॉडी हैज सेड बी, राइट? एवरीबॉडी सेड द बी इज द आंसर। वन का बी आंसर है, दो का सी आंसर है, थ्री का सी आंसर है, फोर का डी एंड फाइव का डी। अच्छा सर, पहले क्वेश्चन देखा, हाँ हाँ क्वेश्चन पहले देखो डेफिनेटली रवि,
मैं जस्ट रीडिंग स्पीड बिल्ड करने की कोशिश कर रहा हूं, बट एग्जाम में योर फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ड्यूटी इज टू सी द क्वेश्चन फर्स्ट, देन रीड द पैसेज. ओके, डोंट फॉरगेट टू डू दैट. What I said, remember this thing. What I am trying to here to build your reading skill. That's why I am telling you to read the passage and then go for the question. But while you are going to attempt in the exam, you have to read for the question first, then go to the passage. Because आपको नहीं पता, शायद कुछ क्वेश्चन देखने के बाद आपको आंसर जल्दी से जल्दी पता चल जाए. Need to improve reading speed. Yes, true. And that's why I am doing to you, Chaya. Nothing. Yeah. So need to have a bit more patience to read the passage. Yes. You have to build patience here. Okay. And attention आपको थोड़ा ग्रो करना पड़ेगा, concentration ग्रो करना पड़ेगा, so you'll be able to read the passage totally and able to remember the things. Okay? क्या बोला मैंने? एग्जाम में गलती मत करना, मतलब सर ने बोला था, सर को गाली दोगे तब. ये मैं आपको रीडिंग स्पीड बढ़ा रहा हूं. एग्जाम में पहले क्वेश्चन पढ़ना है. डोंट एवर थिंक ऑफ गेटिंग इनटू द पैसेज फर्स्ट. पहले क्वेश्चन, उसके बाद पैसेज. यहाँ हेयर at least in the session, even आपकी weekly test में भी पहले क्वेश्चन में जाओ, but here in the session itself you just need to develop first the reading speed. इसीलिए मैं आपको पैसेज पढ़ाया एक टाइम लेके. ठीक है, नोट डाउन रखना इसको. अच्छा, ओके. सो मैं आंसर कर चुका हूं सृष्टि, सारे क्वेश्चन का आंसर मैं कर चुका हूं. आई होप एवरीबॉडी हैज नोटेड डाउन द आंसर. आप लोग तो सही दिए हो यार, यू आर स्मार्ट, सो इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. अच्छा, तो मेरा जो सिचुएशन था, मैं इस एक सवाल से स्टार्ट किया था आप लोगों का कि जूरिस्प्रूडेंस, आप लोग बोले थे बिलो एवरेज, जूरिस्प्रूडेंस का एक फोबिया है. मैं आपसे सिंपल सवाल पूछता हूं अभी. मैं नहीं बोल रहा हूं आपका फोबिया एक ही क्लास में दूर हो चुका है या समथिंग लाइक दैट. मेरे साथ आपका जूरिस्प्रूडेंस का रिलेशन बेहतर होगा डाउन द टाइम, दैट आई एम आस्किंग. मेरे साथ रहने से आपका जूरिस्प्रूडेंस का रिलेशन बेहतर होगा, दैट आई एम आस्किंग. वेयर एवर यू आर दैट्स फाइन, बट मेरे साथ रह के आपका जूरिस्प्रूडेंस का रिलेशन बेहतर होगा, वॉट एवर द करेंट रिलेशंस दैट यू हैव. That is the most fundamental thing. ठीक है, क्योंकि आज कुछ पढ़े नहीं है. We haven't studied anything. We just understood what jurisprudence is. ठीक है, और आपको शायद पहले क्लास में थोड़ा बहुत आइडिया लग चुका है. अरे सारे रुको जी, आएंगे. ठीक है. सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग आपको अभी समझना पड़ेगा कि जूरिस्प्रूडेंस जब भी आप पढ़ोगे, आपका पहला क्वेश्चन आएगा, इन लोगों का परसेप्शन क्या था. ये फर्स्ट क्वेश्चन दैट यू वांट टू आस्क टू योरसेल्फ व्हेनेवर व्हिच बुक, जूरिस्प्रूडेंस स्टडी मटेरियल, व्हाटएवर यू वांट टू स्टडी. आपका पहला क्वेश्चन है कि इन लोगों का क्या एक्सपीरियंस, क्या परसेप्शन था, और इन लोगों का नॉलेज जो मुझे पढ़ना पड़ रहा है अभी, वॉट एवर आई एम रीडिंग राइट नाउ, द परसेप्शन एक्सपीरियंस ऑफ दैट एंड द नॉलेज. And the knowledge, these two things that I am learning, that's all. The moment you start saying that, आपका jurisprudence पढ़ने का तरीका बदल जाएगा. And then when you get to understand connecting the dots, which is fundamental, current development के साथ इसको ये करना, jurisprudence के, especially the school के बाद portion easy है, can be tackled, but especially for the schools, how to tackle ऑस्टिन बेंथम, इसको कैसे मैं टैकल करूं, याद कैसे करूं. अगर रिमेंबर करना है, कौन सा पार्ट रिमेंबर करना है, बट फॉर यू रिमेंबर करने के लिए आप लोगों को जो करना है, आपके पास जूरिस्प्रूडेंस का बुक गया है, मैक्सिमम ऑफ यू हु हैव टेकन इट, मैक्सिमम ऑफ यू आपके इंस्टॉलमेंट में गया होगा. बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको जो अभी करना है वो है कि उसके एक रिवीजन मटेरियल आता है उस बुक के पीछे. हैव यू पीपल सीन इट? द पीपल हु हैव इट, द पीपल हु हैव इट, हैव यू सीन इट? Which book are you talking about, sir? जूरिस्प्रूडेंस बुक. आप शायद अभी तक नहीं गए हो, आपके पास हार्ड कॉपी जब जाएगा, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग.
जो जुडिस एज के हार्ड कॉपी मटेरियल जाएगा, उसके पीछे एक रिवीजन मटेरियल है। ओके, अगर आपके पास हार्ड कॉपी नहीं गया है तो आपको समझ में नहीं आएगा। Probably Devjit was asking to me. Sir, do we have the same thing in our soft copy? Yes. सॉफ्ट कॉपी में नहीं है, वो हार्ड कॉपी में ही होगा आपका, ठीक है। Okay. तो वो हार्ड कॉपी में जब आपके पास रहेगा, those things are amalgamated from the 5 books itself, और वो आपका रिमेम्बरिंग वाला पार्ट है मैम। उस चीज को रिमेम्बर करना है, वो आपके लिए दिया गया है। एवरीबडी अंडरस्टूड? दोज आर द रिमेम्बरिंग पार्ट। मैं बोला ना जूरिस्प्रूडेंस के लिए 2 चीज इंपॉर्टेंट है। एक, व्हाट आर द 2 थिंग्स आई सेड? जूरिस्प्रूडेंस के लिए 2 चीज मैंने क्या बोला था जो करना है इन द इनिशियल स्टेज ऑफ द सेशन? एनालिसिस, Remembering रिमेम्बर, and analytic. यस, या कंटेंट या कॉन्सेप्ट समझना। रिमेम्बर वाला पार्ट उस पोर्शन से आएगा, और आपके लिए रेडीमेड वो बना के रखा हुआ है। कोट्स, जूरिस्ट, कौन क्या बोला है, ऑथर का नाम, ये फलाना ढिमकाना, एवरीथिंग इज देयर फॉर यू। आपको वो चीज रेडीमेड आप वहां से हो जाएगा, गिवन इन द हार्ड कॉपी। ये वो आपके बुक में पीछे ही है, बुक के पीछे ही है ऑल द लिस्ट। या दैट्स ऑल, दैट्स ऑल, ठीक है। एनालिसिस के लिए आपको कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा एंड you have to connect the dots. जूरिस्प्रूडेंस आज तक आप समझ नहीं पाए हो क्योंकि जूरिस्प्रूडेंस आप सिर्फ ऐसे थ्योरेटिकल एस्पेक्ट पढ़े हो, उसको प्रैक्टिकल में आपको उतारना पड़ेगा, उसको डॉट कनेक्ट करना पड़ेगा, तभी आप चीजों को रिमेम्बर कर पाओगे। अदरवाइज वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू रिमेम्बर द थिंग्स। Sir, just wanted to ask this. Is there anything else that we will get what we have not got in online module, like through नहीं, offline? और बहुत सारी चीजें जी। आप जब हार्ड कॉपी जाएगा उसमें भी कुछ पोर्शंस रहेंगे, दैट विल बी देयर। ओके, Okay. हाँ, बहुत सारा चीज आपके पास जाएगा तब यू विल गेट टू अंडरस्टैंड। ओके, हार्ड कॉपी भी एड ऑन है आपके लिए, यू विल गेट टू अंडरस्टैंड। तो जूरिस्प्रूडेंस को रिमेम्बर करने का पार्ट वही है, कनेक्ट द डॉट्स। जो डॉट कनेक्ट करोगे, मैं करवाऊंगा, वो डॉट को याद रखना, तब आपको एक एक जूरिस्ट के बारे में याद रहेगा, यू विल बी एबल टू रिमेम्बर द थिंग्स। वो डॉट आपको रिमेम्बर करवाने में आसानी करेगा, ठीक है। अदरवाइज मैं बोलूंगा, आप यहाँ से घुसाओगे, यहाँ से निकाल दोगे नेक्स्ट डे। मतलब क्या बोले थे सर, कुछ याद नहीं सर, कुछ नहीं याद है सर, सारा चीज भूल गया, बैक टू जीरो सर, बैक टू जीरो। हाँ, कॉलेज में जो पढ़ा था वही है सर, और कुछ नहीं, ठीक है। नहीं, अभी नहीं दीदिका जी, मेरा क्लास करना, मैं आपको बोल रहा हूँ वो रिवीजन मटेरियल जो है उसको फॉलो करना, ठीक है। और उसके बाद आप जो टेस्ट दोगे, उसका जो पोर्शन अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है समथिंग, उसका आप ये करोगे, ठीक है। नथिंग एल्स, अभी कुछ नहीं दीदिका जी। फॉर द टाइमिंग जूरिस्प्रूडेंस के लिए ऐसे ही जाओगे आप, ठीक है, फॉर द सेक ऑफ जूरिस्प्रूडेंस ओनली। ओके, इफ यू वांट टू रेफर एनी अदर बुक, आप मेरे पास देखो, मेरे पास 5-6 बुक है। आई हैव बीडी महाजन, फरहान जापे, अवतार सिंह, एवरीथिंग। What is the answer to this? This I say, sir, one doubt, sir. What we are discussing about knowledge, you had asked a question to all of us. From where does this knowledge come? What is the answer to this question? The knowledge comes from the experiences that we have and the facts, either from theoretical or either from practical. That's where the knowledge comes from. Knowledge is nothing but a set of memory that is there. That's all. नॉलेज इज नथिंग बट दैट। तो अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं करोगे, जब आप परसीव नहीं करोगे, देयर आर 3 वर्ड्स दैट आई यूज्ड, अगर आप समझ नहीं पा रहे हो उसको डिक्शनरी में देखना। एक वन वर्ड आई यूज द एक्सपीरियंस, what does it mean? Another word I use perceive, because these are the words are very very important words, and another one is the understanding. Awareness word currently I am not using. Awareness word is very much connected to the historical school, okay, because that historical school is all about mysticism, ठीक है। उसमें आता है
यस, मैं आज कुछ नहीं, अमरता आज के क्लास में कुछ नोट्स आपको मिलेंगे नहीं, बिकॉज आई हैवंट शेयर्ड एनीथिंग। नेक्स्ट क्लास में व्हेन आई एम गोइंग टू टेल यू विद पेन एंड पेपर, मैं लिखूंगा इसमें, ठीक है, यू विल गेट टू सी द नोट्स। आज के क्लास में कुछ नोट्स नहीं है, आज का सब जनरल अंडरस्टैंडिंग था, ये क्लास था, कुछ था ही नहीं यार, ये तो जस्ट वार्म अप था, जस्ट वार्म अप। यस रवि जी, जस्ट ए वार्म अप टू मेक यू अंडरस्टैंड, आपके साथ फैसिलिटेट करना, आपके साथ कनेक्शन बिल्ड करना, और जो स्टूडेंट्स के लिए आपके जो डर है उसको देखना, दैट्स द थिंग, नथिंग एल्स। या रवि बताओ, अच्छा क्लास कुछ नहीं था क्या, बताओ, इट्स अ सिंपल थिंग। व्हाई ऑल दिस जूरिस्ट, नहीं ऐसा कुछ नहीं है जी, सेविग्नी कहां से है? आप अगर बोल रहे हो यस ट्रू, यूरोप से बोल रहे हो, द रीजन इज वेरी सिंपल, एंड अदर थिंग, अभी देखो इसका गेम। रवि asked a very important question, sir, why all these tourists belong from Europe? ठीक है, it's a game from static society to progressive society. आप एक बात करो, नहीं नहीं नहीं, एक बात करो, प्राइवेसी लॉ हम लोगों के पास कब आया, यूएस के पास कब आया? मैं यूरोप नहीं बोल रहा हूं, बट यूएस बोल रहा हूं यहाँ पर, टू सी के हम लोग का प्राइवेसी लॉ, अभी तो लेजिस्लेट तो दूर की बात है, बट एटलीस्ट वी कंसीडर इज ए फंडामेंटल राइट। हम लोग का फंडामेंटल राइट बोले, वो लोग का फंडामेंटल राइट बोले, रवि और एनी वन ऑफ यू, प्राइवेसी लॉ को वो लोग कब कंसीडर किया एज ए फंडामेंटल राइट, और हम लोग कब कंसीडर किया एज ए फंडामेंटल राइट? एनी गेस करो, मतलब आपको मैं एग्जैक्ट आंसर देने के लिए नहीं बोल रहा हूं, बट आर यू अंडरस्टैंडिंग, इट इज द डेवलपमेंट of your experience and development of your consciousness knowledge। आप जितना जल्दी फेस करोगे उतना जल्दी आपके दिमाग में आएगा, एंड तब उतना जल्दी आप रिएक्ट करोगे चीजों से। अगर आप नहीं करोगे, आप जितना प्रोग्रेसिव सोसाइटी में जाओगे, लॉ उतना आपको देखने के लिए मिलेगा। Am I understanding, Ravi? Am I making you, am I giving you समझ पा रहे हो आप व्हाट आई एम टेलिंग टू यू? जितना प्रोग्रेसिव सोसाइटी, नॉलेज ऑफ लॉ इज डिफरेंट, एंड दैट्स व्हाई दे हैड द प्रोग्रेसिव सोसाइटी। और हम लोगों में आप देखो ना, हम लोग तो प्राइवेसी रिसेंटली आए हैं, हम लोग सेम सेक्स मैरिज लेके आज उछल कूद कर रहे हैं। यस रवि जी, यस, डिड यू अंडरस्टैंड दिस? आप बोलोगे सर यही तो बात है ना, यही तो जनरल कॉन्शियसनेस ऑफ द पीपल है, आज हम लोग का कॉन्शियसनेस में ये आया है, और कॉन्शियसनेस से आने के बाद हम लोग अभी एक्ट कर रहे हैं। शायद कॉन्शियसनेस में था, फोन तो 2010 में भी था, तब उतना क्या, फोन है बात करेंगे, क्या फर्क पड़ता है, दुनिया तो चल रहा है। पर डेटा के बारे में आ रहा है, जब हम लोग जियो आया डेटा यूज कर रहे हैं, अरे यार आधार आया, अच्छा ऐसा चल रहा है, गवर्नमेंट सारा डेटा मेरा ले सकता है। नहीं नहीं, आप तो सोच रहे थे अभी फंडामेंटल राइट बनना चाहिए, नहीं 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 नहीं, देन लेट्स गो फॉर इट। आर यू अंडरस्टैंडिंग हाउ द डेवलपमेंट ऑफ द कॉन्शियसनेस हैपेंस? डेवलपमेंट, आपके अवेयरनेस कैसे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। आज एआई लेके क्या चैट जीपीटी है या है नहीं, अब 3 साल बाद देखोगे एआई से कुछ कर रहा है, नहीं नहीं नहीं, एआई कुछ भी गलत काम कर रहा है, बोले एआई का लॉ बनाना चाहिए। तब हाउ कैन दिस हैपन विदाउट एआई लॉ? राइट, समझ पाए आप? अंडरस्टैंडिंग एवरीबॉडी? ओके, सो गाइस, ऐसे ही बहुत सारे डिस्कशन किया आप लोगों के साथ, ठीक है। हाउ वाज द सेशन ओवरऑल? हाउ वाज द सेशन? हाउ वाज द सेशन ओवरऑल? कैसा था? दैट्स ग्रेट, good warm up. Yes, it's a warm up thing.
यस, दिमाग तो खोलना ही है, ठीक है, दिमाग तो अभी खुला नहीं है, दिमाग खुलेगा धीरे धीरे। Yes, that's a very Kasturi sir. Sir, I don't absolutely despise jurisprudence anymore. Yes, that's the thing. That's the way you're going to change the change your perspective about jurisprudence. Yes, that's a very important thing. So this is the starting. Okay. Good mama, but still scary. That's the thing. You will get to understand. You have to build the things. Ravi is saying must. Definitely. Okay. So we have to build the things और हम लोग धीरे धीरे जानेंगे, उसके बाद इम्प्लीमेंट करेंगे तो हो जाएगा। अभी देखो एक चीज है, एक चीज में समझता हूं, निपुण जो बोल रहे गुड वार्म बट स्टिल स्कैरी, कस्तूरी का, अगर मैं कोई चीज को आपको प्यार करवाना सिखा दूं, मैं कोई चीज को अगर आपको प्यार करवाना सिखा दूं, कैन यू स्टॉप लविंग इट? अगर मैं कोई चीज को आपको प्यार करवाना सिखा दूं तो कैन यू स्टॉप लविंग इट? मेरा काम है योर फैसिनेशन एंड लव टुवर्ड्स दैट सब्जेक्ट और दैट पर्टिकुलर लॉ इज गोइंग टू इंक्रीज। अगर जब प्यार बढ़ जाएगा तब बाहर में जाए सुनिए तो सर यार मेरे को अभी जूरिस्प्रूडेंस पढ़ने में अच्छा लग रहा है, आई रीड इट बाय माय सेल्फ, सिंपल। समझ पाए? गॉट इट? निपुण, कस्तूरिका, डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट आई सेड? मेरा काम है उतना ही, जस्ट आप और जूरिस्प्रूडेंस के रिलेशनशिप थोड़ा ठीक कर दें, मेरा काम तो हो गया जी। ओके, सो आई एम नॉट गोइंग टू टॉर्चर यू एनी मोर टूडे, एटलीस्ट फॉर द वेरी फर्स्ट डे, क्योंकि बहुत कुछ मैं आपसे ऐसे ही थोड़ा हेवी हो गया सर, थॉट नॉलेज बहुत सारा चीज आप करवा देते हो सर, ऐसा ठीक नहीं करते हो, ठीक है। आई एम गोइंग टू मीट अगेन नेक्स्ट वीक एंड टेकिंग टू द नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है। बाकी डेफिनेशंस क्या है, ठीक है, आपके उसके लिए वार्म अप क्या करना है, डेफिनेशन क्लॉज में जितने भी डेफिनेशंस है आप एक बार देख के आओ, वी आर गोइंग टू डिकोड दैट डेफिनेशंस, ठीक है। हम लोग उस डेफिनेशन को एक बार डिकोड करेंगे, समझेंगे इस डेफिनेशंस में क्या क्या है। डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट्स योर वर्क? सिंपल, ओके। और आपके जो पैसेज आएंगे, इट्स अ वेरी सिंपल पैसेज दैट विल बी आस्क्ड फॉर द वेरी फर्स्ट वीकली टेस्ट, ज्यादा टफ आपसे नहीं पूछा जाएगा डेफिनेटली, बट धीरे धीरे टफ होगा, ओके। तो डेफिनेशन से आप लोग पढ़ोगे, डेफिनेशन समझोगे एंड हम लोग थोड़ा उसके आगे जाएंगे डेफिनेशन से अभी, ठीक है। अच्छा, एनी क्वेरी सो फार? एनीबॉडी वांट टू आस्क एनीथिंग? सर पैसेज को एक बार पढ़ के कैसे समझे? इट विल डेवलप सृष्टि जी, इट विल डेवलप, डोंट वरी। अच्छा, डेफिनेशन क्लॉज नहीं, डेफिनेशन चैप्टर अमर्त्य, नथिंग नहीं जी, डेली नहीं, डेली हो गए तो आप ले नहीं पाओगे डेली नहीं, मेरा क्लास है अभी मंडे टू फ्राइडे, मेरा क्लास मंडे को, ठीक है, माय क्लास विल बी ऑन मंडे। यस सर, डेफिनेशन चैप्टर कहां से पढ़, एनीथिंग आपके पास जो भी है, ठीक है। कल कोई और सब्जेक्ट होगा, कल शायद आपके जूरिस्प्रूडेंस होगा, यू विल गेट द ये कल जूरिस्प्रूडेंस होगा, परसों भी शायद जूरिस्प्रूडेंस है, उसके दिन नेक्स्ट डे कंपनी लॉ है, उसके बाद सीआरपीसी है। सारे सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट है, प्राइमरी सब्जेक्ट्स का गेम है मैम और सर, ठीक है। सर एक चीज पूछनी थी, बताओ। जैसे अभी आपने स्केड्यूल बोला, प्रोबेबल स्केड्यूल व्हाटएवर इट इज, ये मतलब इसमें हम क्या सिर्फ बेस केस लॉस पढ़ेंगे ना, राइट, एक्सेप्ट जूरिस्प्रूडेंस? जूरिस्प्रूडेंस तो अलग, यहाँ पर इंटरनेशनल लॉ होगा जूरिस्प्रूडेंस के बाद, ठीक है, क्योंकि ये प्राइमरी सब्जेक्ट्स है, ये सब्जेक्ट्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स, ठीक है। नाउ यस, उसमें बेसिक्स एंड केस लॉस नीला जी दोनों होंगे, ठीक है। हाउ द क्लैट इज बेसिकली आस्किंग, दैट्स हाउ इट इज गोइंग टू बी देयर। ओके सर, एक चीज और पूछनी थी, बिकॉज आई जॉइंड इन जनवरी, राइट, तो मेरे पास एक सेट ऑफ स्टडी मटेरियल आ चुका ऑलरेडी, ऑफ कोर्स वो फरवरी तक आ गया था, अभी एक सेट और आएगा क्या? आपके पास आएगा अभी 2023 का, यस, एक सेट बोलने से 2023 का केस स्टडी, यस वो वाला
ये केस बुक्स आएंगे और कुछ बाकी सब्सटैंटिव लॉ वगैरह तो आ चुका ना सारा? हाँ हाँ, एवरीथिंग इज डन, एवरीथिंग इज डन, आपके पास और कुछ नहीं। ओके ओके सर, थैंक यू। अच्छा, और कुछ क्वेरी है किसी का? डेफिनेशन चैप्टर हमेशा कोई भी बुक जुडिस के स्टडी मटेरियल पहला जो चैप्टर है आप थोड़ा पढ़ के आना, दैट्स द थिंग, ठीक है? मैं सर आपको यस सर ये मतलब जो लोग अभी जिनके पास सिर्फ ऑनलाइन मटेरियल है अभी के लिए, तो उन लोगों को जूरिस्प्रूडेंस अभी कैसे अप्रोच करना चाहिए एटलीस्ट जब तक आपको अभी पहला फर्स्ट चैप्टर पढ़ो ना, नो प्रॉब्लम, ठीक है? फर्स्ट चैप्टर कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके वहीं से जो नोट्स वगैरह का वो हाँ हाँ हाँ, वही से यू डोंट नीड टू वरी अबाउट एनी अदर थिंग, वही पढ़ो, ठीक है? और आप नहीं भी पढ़ के आओ दैट आल्सो फाइन, बट अगर आप पढ़ के आओगे यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड बेटर, दैट्स द ओनली थिंग। हाँ सर, आई रिमेम्बर सर दैट यू हैव गिवन मी अ टारगेट की यू नो ठीक है, हाँ स्पेसिफिक मैं आपको टारगेट दिया था, यस ओके याद है सर, आप टारगेट दिए थे, वो चलो यस, एंड दैट्स द थिंग। अच्छा, सो दीज आर द थिंग्स दैट आई वांटेड टू शेयर विथ यू, बट देखो चीजें जूरिस्प्रूडेंस में ना कुछ कुछ चीजें आपको थोड़ा पेशेंटली डील करना पड़ेगा, इट्स नॉट लाइक अदर सब्जेक्ट, आई एम टेलिंग यू, स्टिक विद इट एंड डू इट, इट्स नॉट लाइक अदर सब्जेक्ट्स, पेशेंटली डील करना ही पड़ेगा, अदरवाइज 10 मार्क्स छूट जाएंगे जी। अच्छा, और कुछ क्वेरी है? एनी अदर क्वेरी? एनी अदर क्वेरी जी, एनी अदर क्वेरी, एनीथिंग यू वांट टू आस्क? प्रेरणा, प्रियंका, निपुण, निलय, नील, रितिका, रवि, सज्जत, सौरभ, शिवम। Excuse me, sir. Yes, who is this? Whoever is it, tell me. Sabrina. Oh, Prerna, बताओ, how are you? Sir, this is for the first time I'm reading jurisprudence since Oh. मेरे Yes. law college में अब तक ये सब्जेक्ट आया नहीं है, it's in the next semester. So it's my request कि हम थोड़ा सा बेसिक से चले क्योंकि आज 50% बाउंस ही गया है। नहीं नहीं, 50% बाउंस नहीं, आज तो मैं आपको जूरिस्प्रूडेंस के नॉलेज ऑफ लॉ दे रहा था, ठीक है? दैट्स द थिंग, ओके? अच्छा, इसके लिए मैं आपको एक चीज बोलूंगा, अगर द पीपल लाइक यू, राइट, प्रेरणा एंड दीज पीपल, आप देखो आप में कुछ रिकॉर्डेड वीडियोस है रिकॉर्डेड वीडियोस है जूरिस्प्रूडेंस के, आई होप यू पीपल कैन सी आपके स्टूडेंट पोर्टल में Yes, sir. रिकॉर्डेड वीडियोस है ना, उसको आप एक बार देखो, ठीक है? देवजीत, मैं आपको भी बोल रहा हूं, आपके में ही देखना जूरिस्प्रूडेंस का रिकॉर्डेड वीडियोस होगा, ओके सर। ओके? वो आप रेफर कर सकते हो, उसके बाद आप ये कर सकते हो इफ यू वांट टू, अदरवाइज यू कैन कम हियर, यू कैन अंडरस्टैंड द थिंग्स। बट प्रेरणा, दैट्स ग्रेट के सपोज आप शायद जूरिस्प्रूडेंस कभी नहीं पढ़े हो, यू आर गोइंग टू स्टार्टिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम, बट यू स्टिक टू द लास्ट, दैट आई एम ग्लैड फॉर दैट, ठीक है? बट कि आप में पेशेंस है कि आप इस चीज को समझना चाहते हो, ठीक है? आई एम रियली ग्लैड दैट यू स्टिक। Sir, also on a contrary side, sir, if I say, for example, if one is thoroughly if one has thoroughly revised the material that has been provided in online materials in 1 month, say in 1 month में मैंने पूरा जो स्टूडेंट वहाँ से खत्म कर लिया जितना ऑनलाइन का था, will how much well prepared will that be? देखो, जूरिस्प्रूडेंस के लिए आप ऑनलाइन मटेरियल जो पढ़ोगे दैट्स इनफ, ठीक है? उसके बाद तो आपके पास प्री रिकॉर्डेड वीडियोस है, उसके बाद मेरा क्लासेस, देयर आर 3-4 डिफरेंट काइंड ऑफ मटेरियल ऑलरेडी एग्जिस्टिंग विद यू, हम जूरिस्प्रूडेंस के साथ ही, ठीक है? गॉट इट? सो व्हाटएवर आई एम सेइंग, आप अगर स्टडी मटेरियल प्रेफर करते हो, आप स्टडी मटेरियल से पढ़ो, डोंट वरी देवजीत, मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ यू हैव टू सी द वीडियोस और समथिंग लाइक दैट, नथिंग। इफ यू प्रेफर स्टडी मटेरियल, रीड स्टडी मटेरियल, आपको जो पसंद आए दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ओके? Okay, so the reason why I'm asking was that, sir, because अभी वो जो आपके बुक्स वगैरह हैं जो हार्ड कॉपीज है वो आने में तो अभी 1 महीने का टाइम, so for that you know it is time, अगर so I आपको thought पहले लेना है देवजीत, यू कैन आल्सो टेक इट, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, तो 1 महीने ही वेट करना है, भगवान बोल चुका है, ऐसा कुछ नहीं है, इफ यू वांट टू टेक इट अर्लियर यू कैन टेक इट, बट आपको अगर 1 महीने बाद ही लेना है दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, आप हार्ड जो ऑनलाइन मटेरियल के पहला चैप्टर था वो ही देखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? okay sir. बोथ आर इक्वली देयर, यस। अच्छा, कुछ क्वेरी है और? छाया, यू आर आस्किंग एनीथिंग, यू से यस एट लास्ट, इफ यू हैव एनी क्वेरी डू लेट मी नो। No, sir. I was talking about the study material and the live classes. It was available. अच्छा, वो आपको समझ में आ चुका है अभी? Yes, sir.
Yes, that's great. Acha. Chalo, any other query? Then otherwise we're going to end it here. Okay. Otherwise we're going to end it here. Thank you. It was a great session altogether. Thank you for your cooperation. Thank you. Thank you. आप एक बार मुझे मैसेज करो दिशा. There are some hard copy material शायद आपके पास कम गए होंगे. ठीक है, शायद एक दो जाएंगे आपके पास. ठीक है, आप यमुना को एक बार मैसेज करो. यस यस, स्मॉल बुक स्मॉल बुक ही काफी है उसके लिए. यस सर, मैंने जूरिस यस रवि, इट्स एनफ. यस यस यस, डेफिनेटली. रवि डायरेक्ट मैसेज कर रहा है. रवि किसी को जानने नहीं देगा. सर मैं क्या कर रहा हूँ, ये मेरा है सर. यस दिस यस, सीक्रेट कोड रवि का. यस थैंक यू. ओके चलो, थैंक यू. यस यस, थैंक यू सो मच. गुड नाइट, सी यू अगेन. थैंक यू. माय प्लेजर. थैंक यू सज्जन. यस.